Hello, children. Now we are discussing chapter 12 light of grade 7. Okay, so what is light? How we can define light? Light is a form of energy that help us to see the things. Suppose if you enter a dark room, the things will be over there and you have your eyes by which you see the things, but still you can't see the things because there is dark, there is no light. So light help us to see the things. When the light falls on any object, then the object is visible to us. Okay, so the first property of light that is discussed in the chapter is rectilinear propagation of light. Rectilinear, you have studied in this in grade 6 also. Rectilinear means anything that is moving in a straight line. Rectilinear. Now propagation means the movement. So rectilinear movement of light is the property of light by which it is moving in a straight line, means the light always travels in a straight line. Okay, so you can understand by this activity that is given. The light always travel in a straight line. If you have a straight tube, then you can see the torch light on the surface. But if you bend the tube, you will not be able to see the light over there because the light do not bend and go through the path. If the light path is bent, it will stop over there, it will not move in the forward. Okay, so light always travel in a straight line, it does not bend and move. Okay, now then, so understood, the light always travel in a straight line, and this property of light is known as rectilinear propagation of light. The second topic is reflection of light. Reflection means the example that I gave you initially, that if you enter in a dark room, your eyes are over there by which you see the things are kept over there, but still you cannot see the things because the absence of the light. If the light will not be able to there, you will not be able to see the things. Now what the light is doing, whenever the light is falling on any of the surface, it gets reflect and then we are able to see the things. Now we can understand by a simple diagram. Reflection हम simple समझ सकते हैं. See, if this is your surface, this is the light that is traveling, it hits on the surface, it get reflected, and our eyes are able to see it clear, then we are able to see the things. So this spot is only visible to us because the light ray is falling on it and it is reflecting the light, and this light is being perspected by our eyes and we are able to see the things. So this is reflection of light. How we can define? The bouncing of light from a surface is known as reflection of light. The light, whenever it falls on any of the substance, it get bounced back, and this bouncing back is referred as reflection of light. Okay, so understood this? What is reflection of light? The bouncing back of light is known as reflection of light. Okay, so here is a diagram that explains you. If you have a mirror, okay, the reflection that you see in your mirrors, how it is formed? Whenever you start standing in front of a mirror, the light first of all is falling on you, then it is getting reflected. You act as a surface, the light falls on you, it get reflected from a body, it hits on the mirror, then from the mirror it also acts as a reflecting surface. From the mirror it is reflecting back to your eyes, then you are able to see the self image. आप mirror के अंदर तब अपनी image को देख सकते हैं. So this the mirror is considered as a smooth surface, and the walls, if you stand in front of a wall, can you see your image? No. So because that wall is rough surface, we usually see the images of ourselves in a clear way in the smooth surfaces like mirror. But we stand if in front of the your walls, those are the rough surfaces and we cannot form the image on it. Okay, so the smooth surfaces form the image of an object because of the light falling on the object. Okay,
Then this is the concept of image and object. You are able to see over here. The object is as you, and the image that you are seeing inside a mirror is the image that is formed because of the reflection property. The light first fall on you, then from your body it hits the surface, then from the surface it hits you, from the mirror it hits in your eyes, then you are able to see the image on the mirror. Okay, next. So this is the law of reflection. First law of reflection says that all these demonstration I have done in the class also. The first law say that suppose if this is your reflecting surface, okay, suppose this is your reflecting surface. This is very thin. Okay, this is your reflecting surface. Now the light that falls on the light that falls on the surface is known as incident ray. This is the ray of light. Then I told you that it get reflected, and this reflected ray we are able to see. Now the light that is falling on it is the incident ray. This is your incident ray, this is your reflected ray. Now if we draw a perpendicular on this surface, means this is your reflecting surface. Now this is your reflecting surface, this is a perpendicular on the surface, this is known as normal, we denote it as n. Now the angle made by the incident ray and the normal is angle of incidence. The angle made by the reflected ray or with the normal is angle of reflection. Clear? You can see this diagram over here also. This is your incident ray, this is your reflected ray, this is your normal. It is being drawn on the surface, this is your surface, it is being drawn. So this is your angle I, this is your angle R. The first law of reflection says that angle I is always equal to angle R. The angle of reflection is always equal to angle of reflection. Clear? The angle of incidence is always equal to angle of reflection. Clear? So this always, this angle से means if the incident ray is making 30 degree with the normal. Clear? If it is making 30 degree with the normal, the reflected ray will always form 30 degree with the normal. These two angles will always be same. ये दो angle आपके जो होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, same होंगे. Clear? So this is also known as your first law of reflection, that angle of incidence is always equal to angle of reflection. Clear? Next, real and virtual image. Real image means, okay, so if you see on the थिएटर्स में आपकी स्क्रीन लगी होती है, पीछे से आपकी मूवी चल रही होती है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन. मतलब वो उस वॉल पे, उस स्क्रीन पे इमेज बन रही है जो भी आपकी मूवी चल रही है. बट if you talk about your mirrors, you are standing in front of a mirror, but in background there is nothing. Clear? background में क्या है, nothing. आप mirror से हट जाएंगे, आपकी image हट जाएगी. So the images that are formed in the mirrors but not on any screen, कोई स्क्रीन पे नहीं बन रही है, तो उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस. और कोई भी हम जैसे इमेज है वो हमारी रियली कहीं पे बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज. क्लियर? सो इफ एनी इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब ऐसी इमेज है जो कि किसी स्क्रीन पे बन रही है हमारी, तो वो कैसी हुई, हमारी
रियल इमेज। और अगर हमारी जैसे कि मिरर्स के अंदर इमेज जो बनती है वो कहीं पे भी स्क्रीन पे नहीं, खाली मिरर पे है, तो वो कैसी है, वो आपकी वर्चुअल इमेजेस है। क्लियर? सो वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ स्क्रीन एंड द रियल इमेजेस कैन बी ड्रॉन ऑन अ screen. Okay. Now image formation is also taking place inside your eyes. आप कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसकी इमेज ही तो बन रही है, वॉट एवर यू आर सीइंग। एंड दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक फैक्ट that whatever you are seeing is upside down. Whatever we are seeing, this is the property of our eye, that everything that we are seeing is upside down. ये आपका फ्लावर है, ये आपके आई के अंदर जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। बट आर ब्रेन इंस्पेक्ट इज एंड मेक इट अ स्ट्रेट, मतलब आप जहाँ पे खड़े हैं, आपकी आईज के लेवल, हर एक के लेवल से आपका ब्रेन उस चीज़ को इंस्पेक्ट करता है कि मतलब वो चीज़ सीधी है। सो एक्चुअली द ब्रेन इज सीइंग, मतलब वो जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट ब्रेन इज फॉर्मिंग द इमेज, बट what actual image is being formed in your eyes, inside your eyes, is the real image and it is inverted. Clear? Real and inverted image बनती है आपके eyes के अंदर, and आपके brain इसको इंस्पेक्ट करके क्या करता है, उसको सीधा करता है। Clear? Next. Now, here are the properties of the images. These are the properties of the images that are formed in a plane mirror. Plane mirror में आपकी जितनी भी images बनती हैं उनकी क्या characteristic? First is virtual. Virtual का मतलब होता है, virtual means it is not forming on a screen. अगर आप उसे किसी screen पे बनाएंगे, किसी real surface पे, तो वो वहाँ पे नहीं बनेगी, वो सिर्फ एक virtual है, खाली mirror में दिखाई देती है, it is not a real image. Then erect. Erect means if you are standing in front of a mirror, it is you are not upside down. उल्टे तो दिखते नहीं है हम मिरर के अंदर, हमारा हेड हमारे सामने ही दिखाई देता है, सो दैट मीन्स इरेक्ट। अगर आपको इमेज उल्टी दिखाई देती है, मीन्स यू आर अपसाइड डाउन, देन इट इज नोन एज इन्वर्टेड। सो प्लेन मिरर जो हम डेली मिरर्स देखते हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो वर्चुअल है, मतलब कि वो कहीं पे पीछे स्क्रीन पे नहीं बनती है। इरेक्ट है कि मतलब जैसे स्ट्रेट हेड, अगर आपका हेड है तो हेड ही दिखाई देता है। ऑफ द सेम साइज, आप मिरर में खड़े होते हैं ऐसे, तो मतलब आप मतलब जिस भी साइज के हैं आपको वही साइज दिखाई देती है, इट मीन्स द सेम साइज। अपीयरेंस ऑफ द एज मस्ट बिहाइंड द मिरर एज इन फ्रंट ऑफ इट। आप मिरर से जितनी पास जाएंगे आपकी इमेज भी उतनी ही पास आएगी, आप मिरर से जितना दूर जाएंगे आपकी मिरर भी उतनी दूर जाएगी। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड रेज करेंगे तो मिरर आपका इमेज का कौन सा होगा हैंड, आपका लेफ्ट हैंड होगा। सो ये हम सिंपली लेटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम एल लेटर को मिरर के सामने लेके जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? सो दिस इज literal inversion, the conversion of the left to the right, the left to the right is known as your lateral inversion. Clear? देन नाउ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर मीन्स अभी जो हमने देखा, जो आप डेली देखते हैं वो कैसे मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू काइंड, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कैसे बनते हैं, अगर हम जैसे आपके मिरर्स बनते हैं, आपको एक स्फेयर लें, ऐसे आपका पूरा स्फेयर लें और उसके ऐसे दो सरफेसेस लें, मीन्स अगर आपका ये अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग और हमने बाहर पेंट कर दिया है तो ये कैसा होगा हमारा, कॉनकेव। ये केव की तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है और इसके बाहर अगर मतलब इस तरफ लाइट जा रही है, उधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कैसा हुआ, कॉनकेव मिरर। अगर हम इसके बाहर का सरफेस लेते हैं, मतलब हमने ये लिया, इसका ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे लाइट फॉल होकर रिफ्लेक्ट हो रही है और हमने अंदर वाला पेंट कर दिया, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? सो केव लाइक स्ट्रक्चर कॉनकेव मिरर, और आपका ऐसे जो आउटर सरफेस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? सरफेस समझ में आ गया, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आपके कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये पूरा एक स्फीयर है, हमने इसके पार्ट का मिरर लिया हुआ है, तो इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट, radius of curvature. This is the radius of the sphere that we have taken. Principal axis, the line passing from the center of curvature, and the pole. Now pole is what? It is the center of the mirror. ये आपका मिरर है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट ये होता है, इफ दिस इज अ कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बोला कॉनकेव मिरर है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, जो आपका ये सेंटर, इसको हम पी से डोनेट करते हैं, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अगर यहाँ पे कोई भी लाइट हमारी पैरेलल फॉल होती है, वो हमेशा एक जगह से पास होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। whenever the parallel rays are falling on the mirror, it always passes from the focus, so this is known as principal focus। मतलब अगर आप जैसे सनलाइट लें, उसको क्या कहते हैं? किसी स्फेरिकल मिरर से दिखाएं और उसकी इमेज किसी पेपर पे बनाएंगे, तो जहाँ पे उसकी एग्जैक्ट इमेज बहुत शार्प बन रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। सो when all the parallel rays are falling on the mirror, it get reflected at a single point, that is known as principal focus। focal length क्या होती है? distance between the pole and the focus। मतलब P और F की ये जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, सॉरी, P और F की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। क्लियर? ये इमेज आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी पैरेलल रेज हैं। क्लियर? इन पैरेलल रेज को जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ मिलती है? जाके प्रिंसिपल फोकस पे। सिमिलरली ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इस पे जो भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जो भी लाइट पड़ी वो कैसी होगी? रिफ्लेक्ट बैक। इससे एक कंसेप्ट आपका और आता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मीन्स आप यहाँ देखेंगे जितनी भी लाइट पड़ रही है वो एक पॉइंट पे आके मिल जा रही हैं, और इसमें जितनी भी लाइट पड़ रही है वो बाहर जाके क्या हो जा रही? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। क्लियर? और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग याद रखिएगा। अगर वो सारी पैरेलल रेज को एक जगह पे मिला दे रहा है तो वो कैसा हुआ? कन्वर्जिंग। अगर वो सारी लाइट को बाहर कर देता है तो डाइवर्जिंग। कॉनकेव मिरर सारी लाइट को मिला देता है, कन्वर्जिंग, और आपके ये बाहर कर देता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया डाइवर्जिंग। तो ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखिएगा ना। ये आपकी एक टेबल है, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी डाल दूंगी, द इमेज फॉर्मेशन, कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारी अलग अलग जगह पे है तो कैसी इमेजेस बनती हैं हमारी। क्लियर? ना यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं कॉनकेव मिरर का? कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को एक जगह फोकस करता है। तो हम उसे कहाँ यूज करते हैं? सोलर कुकर्स में यूज करते हैं, उसकी सोलर एनर्जी के लिए फोकस करने के लिए। टॉर्चेस में, कार हेडलाइट्स में, जिससे कि लाइट हमारी क्या हो जाए? पावरफुल बीम एक जगह पे पड़े। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बनती है हमारे इमेजेस की क्या करने के लिए? उसकी इमेज को थोड़ा सा शार्प करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, एनलार्ज करने के लिए, जिससे कि हमें चीज़ें, मतलब वो इमेज अच्छे से बने। देन शेविंग मिरर्स को यूज़ करते हैं, उसको भी मैग्नीफाई करने के लिए, जिससे हमें चीज़ें साफ दिखाई दे। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जिससे हमारी टीथ की एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे। क्लियर? देन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? रेयर व्यू, आपकी गाड़ी के बगल में यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सी चीज को छोटी इमेज बना देता है, बड़ी सी चीज को। तो हमें रोड की पूरी इमेज चाहिए एक छोटी सी जगह पे, तो क्या यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो हमारे जो रेयर व्यू, मतलब गाड़ी के ऊपर सामने की तरफ लगा रहता है और बगल में लगा रहता है, दोनों कौन से मिरर्स होते हैं? आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जिससे इतनी बड़ी रोड की एक छोटी सी इमेज बन सके। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ लेंसेज। लेंसेज क्या है? आपने जैसे मिरर्स होते हैं, हमने एक स्फीयर लिया, इसका ये पार्ट निकाल लिया और इसके पार्ट को हमने पीछे से कलर कर दिया। एक हमने इधर बाहर का पार्ट लिया, इसके अंदर वाले पार्ट को कर दिया। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्लियर? अब हम अगर हम उसकी बात करें लेंसेज की, तो हमारे ये क्या है? दोनों आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है। मतलब ये जो हमारे दो हमने स्फीयर लिए, यहाँ पे टू स्फीयर्स वी हैव टेकन ना।
अगर हम इसके दो स्फीयर्स के दो तरीके से लेते हैं, अगर हम इसके आउटर सरफेसेस ये सब ले रहे हैं और ऐसे बाहर निकाल ले रहे हैं तो हमारा एक मिरर इस शेप में बाहर आता है, और अगर हमारे लेंसेज को हम ऐसे कट कर रहे हैं तो ये बीच वाला पोर्शन जो है वो ऐसे निकल के आता है। क्लियर? सो हम दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लेते हैं, जिसके हम क्या कर रहे हैं, दो ग्लासेस के आपके दो अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ले रहे हैं। तो हमारा जो इस शेप में निकल के आता है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इसमें भी केव के उससे याद रखिएगा, जिसमें केव बनती है वो कॉनकेव लेंस हो गया, और जो दूसरा वाला होता है जिसमें आउटर सरफेस होता है वो कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स वाला। क्लियर? तो केव से याद रखिएगा, दोनों कंसेप्ट याद रहेंगे। क्लियर? सो लेंसेज क्या होते हैं, व्हाट आर लेंसेज? द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल। आपके लेंसेज कैसे होते हैं कि जिसमें स्फेरिकल लेंसेज आपके पार्ट्स होते हैं। क्लियर? नाउ डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कैसा होता है, आपने पीछे डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का कैसे, मतलब पैरेलल रेज है उसको एक जगह कन्वर्ट कर। तो आपके जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, जितनी भी लाइट पड़ती है उसको एक जगह पे फोकस कर देता है। तो कॉन्वेक्स आपका लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। वहीं आपके कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन कॉनकेव लेंस की बात करें तो जितनी भी लाइट होती है वो ऐसे बाहर की तरफ फैल जाती है। तो कॉनकेव लेंस कैसा हुआ, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कैसा हुआ, कन्वर्जिंग। क्लियर? तो ये डायग्राम्स याद रखिएगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के, कि जो लाइट मिला देगा वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। दोनों अपोजिट होते हैं, जो आपके मिरर्स होंगे, देखिए आपका कॉनकेव कॉनकेव मिरर ये होता है जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है। इसमें जो भी आपकी लाइट पड़ती है वो क्या हो जाती है, एक जगह पे जाके मिल जाती है। वहीं कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग। इसमें जो भी लाइट पड़ती है वो पीछे जाके ऐसे फैल जाती है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसे होता है जिसका बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, तो जितनी भी लाइट पड़ती है बाहर की तरफ क्या कर देता है, फेंक देता है। वहीं कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, दिस। इसमें जो भी लाइट पड़ेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे जाके एक जगह पे मिल जाएगी। तो ये क्या हुए हमारे कन्वर्जिंग। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, टर्म्स वही है हमारे प्रिंसिपल फोकस। उसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही थी। यहाँ पे टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने क्योंकि दो स्फेयर से पार्ट लिए हुए हैं ना, ये दो स्फेयर के पार्ट है लेंसेज में, तो ये दोनों क्या हुए हमारे, दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो मिलाती है उसको हम बोलते हैं वो। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब ये आपका लेंस है तो इसके बीच के सेंटर को क्या कहते हैं, हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। वही आपका कॉनकेव में भी ऐसे ही होता है, ये जो आपका सेंटर है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ना प्रिंसिपल फोकस और उसमें भी वही है, व्हेन द पैरेलल रेज आर फॉलिंग द पॉइंट एट विच दे मीट इट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी देखिए सारी वही इमेज है, हमने पीछे उसमें मिरर में देखी थी, मिरर में हमने ऐसे ही उसको कन्वर्ट किया था, कॉनकेव मिरर में ऐसे ही सारी इमेजेस जाके क्या हो जा रही थी, मिल जा रही थी, और कॉन्वेक्स वाले में क्या हो जा रही थी, डाइवर्ज हो रही, तो हम उसको वर्चुअली पीछे मिला रहे थे। इसमें भी आप वर्चुअली मिलाएंगे और इसमें भी आप, इसमें आपकी रियली मिलती हैं। क्लियर? तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में याद रखिएगा, कन्वर्जिंग वाले में एक्चुअली मिलती हैं, और जिसमें भी डाइवर्ज हो रही होती है लाइट उसमें हम क्या करते हैं, वर्चुअली मिलाते हैं। ये आपकी इमेज फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो आपकी डिटेल्ड बता दूंगी। क्लियर? नाउ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब कि मीन्स वेन एवर अ लाइट, when see the white light is made up of 7 colors। so अगर हमें कहीं पे भी वो स्प्लिट होती है, जैसे कि एक प्रिज्म, प्रिज्म से अगर हम किसी भी लाइट को पास करेंगे तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर? और clear, the pattern formed by these color is known as the band of 7 colors Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। तो आपका यहाँ पे ये सारे कलर्स दिए हुए हैं, इन 7 कलर्स के पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सो दिस इज नोन एज द ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट पीस इज नोन एज योर प्रिज्म। इससे जब व्हाइट लाइट पास की जाती है तो किस में हो जाती है, 7 कलर्स में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर? सो नाउ योर चैप्टर इज बीइंग डिस्कस्ड। हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए मैं आपको वीडियोस रिलेटेड शेयर कर दूंगी। थैंक यू क्लास।